Hello student, welcome with the new chapter, that is the theory of demand, and this is the main base of your microeconomics. क्योंकि जितने भी स्टडी हैं या तो वो माइक डिमांड से रिलेटेड है या सप्लाई से रिलेटेड है, सो दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर of demand. In this chapter we will discuss about some concepts related to the demand. After that we will discuss the what are the demand schedules and the how we made a demand curve. After then there are some functions of the demand who determines the demand, and after then the law of demand, movement in the demand curve, and at the last that the shift in the demand curve. Now the concepts of a demand, already the term desires and demand are usually interchangeable. We think that the desire and demand are the same, but there is a lots of the difference between the desire and demand. But in economics demand has a distance meaning. Okay, दोनों का अलग मतलब होता है. डिज़ायर मीन्स जस्ट ए इच्छा, बट डिमांड इज ए टोटली डिफरेंट थिंग्स. सपोज यू डिज़ायर हैव टू ए कार, to buy a car, but you do not have the enough resource or the money to buy it, then this desire will only remain the wishes or the desires. Okay, so desire means just a wish, it cannot be converted into the demand. In spite of having enough resource or the money, you cannot willing to spend it on car, then the demand does not emerge. If then you did not want to spend the money, you have the resource, but even then you did not want to spend the resource on that to purchase the car, then still it is a desire, not a demand. So the desire become the demand only when you have already to spend money to buy a car or to purchase any goods. So the desire and the demand have the totally different things. The demand for a commodity is the desire to buy a commodity baked up the sufficient purchasing power and willingness to spend. Means कि अगर desire से demand में convert करना है, first of all you have the desire, आपके पास इच्छा होनी चाहिए. दूसरी चीज़, you have the sufficient resource, आपके पास उतने resource होने चाहिए. And the third one is willing to spend. Is it clear? And the last but not the least, दैट गुड मस्ट बी अवेलेबल एट द टाइम, यानी कि जब आप उस गुड्स को खरीद रहे हैं तो वो गुड्स परचेस होनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू परचेज ए वन रॉयल इनफील्ड बुलेट, द कॉस्ट ऑफ दैट बुलेट इज 2 लाख नियर अबाउट. आपके पास 2 लाख रुपए भी हैं. ओके, आप उस पर खर्च भी करना चाहते, विलिंगनेस टू स्पेंड, एंड बट इट्स नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो केवल डिज़ायर ही रहेगी, यानी कि जब तक ये सारी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी वो केवल डिज़ायर ही बनेगी. इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डिमांड. बुलेट खरीदने के लिए आपके पास रिसोर्स होनी, सबसे पहले डिज़ायर इच्छा होनी चाहिए बुलेट खरीदने की. दूसरी चीज़, आपके पास सफिशेंट रिसोर्स होने चाहिए. तीसरी चीज़, आप उस रिसोर्स पे उस बुलेट खरीदने के लिए पैसे एक्सपेंडिचर करने को तैयार हो. एंड आफ्टर एट द लास्ट आपके पास वो गुड्स अवेलेबल भी हो मार्केट में, तब वो डिज़ायर से डिमांड में कन्वर्ट होती है. Now, there is a difference between the demand and the quantity demand. Demand refers to the different possible quantity of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity. यानी कि अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, तो मार्केट में जितने भी कपड़े उस रेंज में अवेलेबल हैं, दैट इज़ योर डिमांड. आप ब्लू कलर की जीन्स, ब्लैक कलर की जीन्स, वाइट कलर की जीन्स, कोई भी जीन्स खरीद सकते हैं विथ योर रिसोर्स. बट देयर इज अ क्वांटिटी डिमांड रिफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. यानी कि जो एक्चुअल में आप परचेज करके लाते हो पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज द क्वांटिटी डिमांड. मान लीजिए कि आप 3000 की जीन्स ब्लैक कलर की खरीद के ला रहे हैं, तो दैट इज द क्वांटिटी डिमांडेड. ये देख लें, यानी कि डिमांड पहले की पोजीशन है और क्वांटिटी डिमांड फाइनल पोजीशन. एट द हायर प्राइस क्वांटिटी डिमांड विल बी लो. ओके, मीन्स व्हेन द प्राइस वाज ग्रेटर द डिमांड विल लेस, यानी कि जब प्राइस ज़्यादा होती है डिमांड कम होती है. ये देख लें. एंड व्हेन द लोअर द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी द हायर डिमांड फॉर अ क्वांटिटी. Let's see, that is the one example. X refers to say 10 units of the X if the price of X will be 5, and the 8 unit when the price will increase 6, and he will purchase the 6 unit of the when the price was increased 7. Okay, मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती चली जाएगी गुड्स की डिमांड घटती चली जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस घटती चली जाएगी डिमांड विल इंक्रीज. ओके, quantity demand of a commodity X refers to say unit of a P X happens to be price at the rate of 6. So demand schedule basically a table presentation of a data is known as a schedule here. It shows the relation between the different quantity of the commodity to be purchased at a different price of that commodity. यानी कि अलग अलग प्राइस पे जो कमोडिटी परचेज कर सकते हैं उसको जब हम टेबल के थ्रू शो करते हैं उसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द सैमुअलसन,
The table related to the price and the quantity demanded is called the demand schedule. Okay, basically there is a two types of a demand schedule. One is the individual demand schedule and the another is the market demand schedule. Individual demand schedule related to the one person, but the market demand schedule were related to the all the persons present in the market. Okay, individual demand schedule refers to the demand schedule of an individual buyer or an individual consumer in the market. It shows the quantity of a commodity which an individual buyer will buy at a different possible price of the commodity at a particular point of time. Okay, but in the market demand schedule represent the demand for a commodity by all the consumer in the market. It shows different quantity of a commodity which the consumer intend to buy at a different possible price of that commodity at a particular point of time. So that is the difference. Individual demand means the demand of a one person, one consumer, but the market demand means the demand of all the consumer in the market. So that is the demand schedules. Individual demand schedules, if the price was increasing 1 2 3 4, the quantity demanded was डिक्रीजेस. जब प्राइस कम होते हैं डिमांड ज़्यादा, लेकिन जब प्राइस ज़्यादा होते हैं तो डिमांड कम. ये एक व्यक्ति की डिमांड है एट ए पर्टिकुलर प्राइस. लेकिन मार्केट में डिमांड मान लीजिए कि 2% से द फर्स्ट पर्सन एंड द सेकंड पर्सन, टू डिफरेंट पर्सन आ रहे हैं. पहले की डिमांड 1 रुपये पे 4 और 5 है दूसरे की, वहीं पे सेकंड प्राइस जब होती है 2 रुपीज़ होती है, 3 और 4. इसी तरह से मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट बढ़ता रहता है. ठीक है, यानी कि जब पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस 1 रुपीज़ थी तो मार्केट डिमांड 9. ओके, यानी कि पहले और दूसरे पर्सन दोनों को मिला के. ओके, सो दैट इज द डिफरेंट मार्केट शेड्यूल. अब बात करते हैं डिमांड कर्व की. अब डिमांड कर्व क्या है? The demand curve is a graphical presentation of a demand schedule showing the how the quantity demand of a commodity is related to the price. यानी कि it will shows the relationship between the price and the quantity demanded. Like the demand schedules, it shows the inverse relationship between the price and the quantity demanded. Means if the price will increase, demand will decrease. Okay, so due to this inverse relationship, demand curve slopes downward from left to right. और इसी की वजह से हमारा demand curve left से right को downward slope होता है. Now, the demand curve shows that the higher the price, lower will be the demand. You declare, and the vice versa. Vice versa मतलब just opposite condition. If the price will increase, demand will decrease. If the price will decrease, the demand will increase. Okay. Likewise, the demand schedule, the demand curve as also have the two aspects. One is the individual demand curve, which shows the demand of one person, but the market demand schedule which curve which shows the demand of all the person present in the market. So that is the demand curve. DD is the demand curve which is with the red line, and on the y axis we will show the price of that particular good x, and the x on the x axis we will show the quantity of the goods x. Is it clear? So it shows the relationship between the price and the quantity of the two goods, and it's on the with the red line, it is a demand curve. Now the demand functions, come to the demand functions, it's very important. It is also known as the determinants of the demand, means the factor on which the demand of the particular goods was dependent. Demand function shows the relationship between the demand for a commodity and its various determinant or the factor on which the demand is dependent. It shows how the demand for a commodity is related to, say, own price of a commodity or the income of the consumer. That is the first determinant. या तो demand price पे depend करेगी, and the second factor is income. ये देख लें, प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, बट इनकम के साथ उनका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. मीन्स कि जब प्राइस घटती है डिमांड बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी डिमांड घट जाएगी. दैट इज द इन्वर्स रिलेशनशिप. लेकिन इनकम के साथ बहुत पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इनकम बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ जाएगी, इनकम घटेगी डिमांड भी घट जाएगी. तो डिमांड फंक्शंस को हम, यानी कि डिमांड लॉ ऑफ डिमांड को हम टू एस्पेक्ट पे बात करेंगे, या तो प्राइस पे या इनकम पे. Corresponding to the two aspects of the demand, that is the individual demand function and the market demand function. Individual demand function shows that how the demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to the various determinant on the various factor. With this numerical factor we will express in this, that the dx, that is the demand of x, is equal to f. F means functions of, means depend on the px, pr, y, t and e. Let's discuss this all the factors. That is the px, first one, means own price of the commodity, means other thing remain equals with a rise in the own price of the commodity. Other thing remain constant means there is a no changes in the social, economical and the political background. ओके ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं जो भी किसी भी चीज़ की प्राइस को इफेक्टेड कर सकते हैं. इस डिमांड कॉन्ट्रास्ट विद द फॉल इन द
इन द प्राइस, यानी कि जब प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी. दैट इज द फर्स्ट फैक्टर डिपेंड ऑन द प्राइस. सेकेंड इज द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड. रिलेटेड गुड्स इज जस्ट वी कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर, यानी कि जो हम एक दूसरे की चीज़ पे एक दूसरे की जगह पे यूज़ कर सकते हैं. दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड. ये देख रहे हैं. एंड द अनदर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड हु कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, यानी कि यहाँ पे एक गुड की डिमांड दूसरे की प्राइस पे इफेक्ट करेगी, या दूसरे की प्राइस पहले की डिमांड पे इफेक्ट करेगी. देख लो. सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में हम बात करें, देयर आर गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस ईच अदर सच एज अ टी एंड कॉफी, और वी कैन रिप्लेस दिस टू थिंग्स. टी की जगह पे हम कॉफी पी सकते हैं, कॉफी की जगह पे टी पी सकते हैं. बोथ आर द सिमिलर गुड्स. इन केस ऑफ सच गुड्स इंक्रीज इन द प्राइस of tea, increase in the price of a tea, in case of such good, increase in the price of tea will directly affect on the demand of coffee. If the increase in the price of coffee will increase the demand of tea, मतलब कि जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है, मान लीजिए कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ के 10 रुपये से 20 रुपये हो जाती है, तो लोग कॉफ़ी को छोड़ के टी पे आ जाते हैं. ये देख लें. सो दैट इज द इम्पैक्ट. Or complementary goods are those goods which complete the demand for each other and are therefore the demand together, like the car and the petrol and the pen and ink, both are impact on the each other. In case of the complementary, if there is a fall in the price of one cause increase in the demand of the good. Means अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो डेफिनेटली पेट्रोल कार की डिमांड घट जाएगी. ये देख लें. सो दे आर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द ईच अदर थिंग. एंड द नेक्स्ट इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ओके. इनकम के साथ देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. डेफिनेटली इट विल इफेक्ट्स ऑन द चेंज इन द डिमांड. इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, डेफिनेटली द डिमांड विल बी इंक्रीज इन द नॉर्मल गुड्स. ये देख लें. यानी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर की डिमांड भी बढ़ जाती है. ये देख लें. दूसरी चीज, टेस्ट एंड द प्रेफरेंस. द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस इज द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो डिपेंड ऑन द individual taste and the preference. Taste and the preference of the consumer are influenced by the advertisement, change in fashion, the climatic conditions, and some new inventions. ये देख लें. If the taste will be changed, definitely the demand will affect it. अगर व्यक्ति अपनी टेस्ट को चेंज कर देता है, मान लीजिए उसकी टेस्ट किसी पर्टिकुलर ब्रांड में है, तो नो मैटर हाउ इट्स विल इम्पैक्ट, कोई प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर प्राइस ज़्यादा हो कम हो, he will definitely choose that good. And the next is the expectation. Expectation means in the consumer expect a significant change in the availability of the concerned commodity in the near future. Definitely the price will be or demand will be change. अगर नियर फ्यूचर में किसी व्यक्ति को लगता है कि ये चीज़ की कीमत बढ़ सकती है या महंगी हो सकती है या अवेलेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली आज वो बढ़े हुए प्राइस में भी उसकी ज़्यादा डिमांड करने को तैयार होता है. द एक्सपेक्टेशन. ओके. नाउ कम टू द लॉ ऑफ डिमांड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ of economics. The law of demand states that other things being equal, the quantity demand increase with the decrease in own price of a commodity and the vice versa. Means the law of demand shows the inverse relationship between the price and the commodity demanded. यानी कि प्राइस बढ़ने का डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि देयर इज अ अपोजिट रिलेशन. ओके. अब जब बात करते हैं द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जिसके बारे में हम बात करें, मीन्स द फैक्टर हु डिटरमाइंस द डिमांड, हु इम्पैक्ट द डिमांड, हु चेंज द डिमांड. यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज करते हैं, हम उनको अदर थिंग बीइंग इक्वल कहते हैं. यानी कि हम ये मान लेते हैं कि सारी चीज़ों में कोई भी बदलाव नहीं होगा. ओके. The law of demand states that other things remain constant or remain equal. There is an inverse relationship between the quantity demanded and own price of the commodity. That is the law of demand. Now come to the market demand functions. Okay. Market demand function shows how the market of a commodity is related. यहाँ पे बाकी सारे वही functions हैं जिसको हम बात करें, PX, PR, Y, taste, expectation. Here only two new factors are there. N is the number of buyer, YD is the distribution of income. डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बायर ऑफ ए कमोडिटी. यानी कि जिस कमोडिटी को खरीदने वाले जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी. ये देख क्लियर. और जितने कम परचेज करने वाले हैं उसकी डिमांड उतनी कम है. एंड द लास्ट वन इज द YT, that is the distribution of income. Market demand is also influenced by the distribution of income in the society. If the rich distribution of income increase inequality, the rich become the rich and the poor become the poor. The demand for the luxurious goods will be increases. यानी कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पैसा कुछ लिमिटेड हाथों में ही होता है, तो ज़्यादातर लग्जरियस गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है. बट व्हेन देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तब कंज्यूमर गुड्स और नेसेसरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है. ये देख ले. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ come to the law of demand.
देर इज़ अ प्राइस ऑफ एक्स एंड द डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस कम होती जा रही है, द डिमांड विल बी इंक्रीज। ये देख लें, हम किसी रेशियो की बात नहीं करें, किसी फिक्स पाथ की बात नहीं करें। हो सकता है 10 के बजाय वो प्राइस 8 हो जाए, 7 हो जाए, 3 भी हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी डिसाइड डिमांड चेंज करता है, बिकॉज इट्स डिवाइडेड, द डिमांड वॉज डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर हिमसेल्फ। उसको हम नहीं बताएं, बस एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करें। That is the demand curve, which shows the positive relation. P is the initial condition in the y-axis, that is the OP is the initial price and OQ is the इनिशियल क्वांटिटी। अगर प्राइस घट जाती है OP से OP1 यानी कि नीचे को आ जाती है, तो डेफिनेटली कम प्राइस में क्वांटिटी जो OQ थी OQ से OQ1 पे आ जाती है। ये देख लें। सो इस ग्राफ को बड़े अच्छे से स्टडी करेगा, इट विल शोज द चेंज इन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। Now, assumption of the law of demand, there is some concept which is related to the assumption which remain constant, which cannot be changes. Law of demand holds the goods when the other thing remain constant, other thing remains, let's discuss. Means the taste and the preference of the consumer did not change, it remain constant. There is no change in the income of the buyer, price of the related goods do not change, consumer do not expect any significant change in the availability of the commodity in the near future। यानी कि सारी चीज़ों में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होता है तो डेफिनेटली डिमांड भी चेंज हो जाएगी। ये देख क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, दिस इज ए एजम्पशन एंड जिसको हम अभी तक अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट कर रहे हैं, दैट इज द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व हमने अभी तक बात की, स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका सबसे बड़ा रीजन दैट इज द लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जिसका हम यूटिलिटी एनालिसिस में डिस्कशन कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट मस्ट बी डिमिनिश, यानी कि एज मोर एज यूनिट वी कंज्यूम द मार्जिन, द यूटिलिटी, द सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। मीन्स कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, हर अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होता जाता है। सो फॉर दैट वी हैव टू पे लेस एंड लेस अमाउंट। देख लें, यानी कि हर अगले यूनिट के एक बार जब हम फुली सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम अगले यूनिट को देने के लिए कम पैसे देने को तैयार रहते हैं। इसके अलावा इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑफ ए क्वांटिटी डिमांड व्हेन द रियल इनकम और द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर विल बी इंक्रीज ऑफ द कमोडिटी। विथ ए फॉल इन द प्राइस, जब प्राइस कम होती है तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, यानी कि वो अपने ही सेम रिसोर्स से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकता है। देख लें। नाउ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिफर्स टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वन कमोडिटी फॉर द अनदर कमोडिटी, यानी कि जब हम एक गुड्स को दूसरे गुड्स से चेंज कर सकते हैं। दस व्हेन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, इट्स बिकम द चीपर इन रिलेशन टू द गुड वाई अकॉर्डिंग टू एक्स हैज टू बी सब्स्टिट्यूट फॉर वाई, यानी कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, जैसे टी और कॉफ़ी की प्राइस की बात करते हैं, अगर एक प्राइस की कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज हो जाता है, डेफिनेटली लोग टी को छोड़ के कॉफ़ी में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, यानी कि कॉफ़ी को डिमांड को बढ़ा जाते हैं। इसी के अलावा साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स मैनी मोर बायर्स कैन बी अफोर्ड टू बाय इट। इसलिए स्लोप डाउनवर्ड होता है, इसलिए कम प्राइस पे डिमांड बढ़ जाती है, दैट्स व्हाई द स्लोप्स डाउनवर्ड। इसके अलावा डिफरेंट यूसेस, व्हेन द गुड्स मे हैव द सेवरल यूसेस लाइक द मिल्क, जिसको हम कर्ड बनाने में, चीज़ बनाने में, बटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट यूसेस, सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड विल बी इंक्रीज इन द लोअर प्राइस। Now come to the exception of law of demand. Exception means where the law of demand was not implemented. कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा डिमांड होती है, दैट इज द एक्सेप्शन, जिसका हम कहते हैं अपवाद लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बढ़ी हुई प्राइस में भी काफ़ी डिमांड हो जाती है, लाइक द गिफन गुड्स। द फॉल इन द प्राइस ऑफ ए गिफन गुड्स लाइक द लो क्वालिटी गुड्स डज नॉट इंक्रीज इट्स डिमांड बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर विल प्रोबेबली डाइवर्ट द एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर टू द परचेजिंग ऑफ ए सुपीरियर ब्रांड। मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो जो लो क्वालिटी गुड्स होते हैं उनको नहीं परचेज करते, दे विल बी स्विच ओवर टू द सुपीरियर ब्रांड, उनकी डिमांड नहीं बढ़ती चाहे उनकी प्राइस कितने भी घट जाए। ये देख लिया। इसके अलावा कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, दैट इज जिसको हम लग्जरियस कंजम्पशन कहते हैं, लाइक द लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ द कॉस्टली आइटम्स लाइक द डायमंड। ये देख लें, जिनकी प्राइस बट क्योंकि डायमंड जो परचेज किए जाते हैं बाय द वेल्थी पर्सन एंड दे डिड नॉट कंसिडर द प्राइस, वो कभी भी प्राइस के बारे में बात नहीं करते हैं, इट्स डिमांड विल बी इवन दैन देयर इज अ प्राइस इज वेरी हाई, यानी कि डायमंड की प्राइस, डायमंड की डिमांड उस कंडीशन में भी होती है जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिकॉज इट इज़ ए स्टेटस सिंबल। That is the conspicuous consumption. And the next is the conspicuous necessity, which is a demand of a necessity goods like the TV, like the automobile, like the refrigerator, which is necessary for to maintain the standard of the living.
ये देख लें। और इनकी डिमांड हम तब भी करते हैं जब इनके प्राइस बहुत ज़्यादा भी होती है, ये देख लें। जैसे कि हम आज के डेट में बात करें, प्लाज्मा टीवी की बात करें, किसी एलईडी की बात करें, ठीक है, तो उसकी डिमांड कॉस्ट वेरी हाई है। हम बात करें 30, 40, 50 हज़ार की भी टीवी है, लेकिन फिर भी हम उसको परचेज करते हैं टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देख लें। Expected change in price, that is a very important factor. When we think that in near future the price of that particular good will be increased, in today conditions we will increase the demand of that condition. If there is a lockdown in the country, at that condition when we think that there is a shortage of a goods is in near future, then we will purchase more good in the same price, ये देख लें। यानी कि हम उसी प्राइस में ज़्यादा परचेज करने। इसके अलावा सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन लाइक इन द कंडीशन ऑफ ए वॉर्स, इन कंडीशन ऑफ ए फेमिन्स, इन कंडीशन ऑफ ए रियॉट, और सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस, ये देख लें। जब हमें ये लगता है कि शॉर्टेज हो जाएगी, इट विल नॉट अवेलेबल और द सम commodity was not present in the market, so we will purchase as a higher price also. And sometime due to the ignorance, that is the next factor. If the consumer is not aware of the competitive price of the commodity, मतलब कि उसको यही नहीं पता what is the price of the one commodity, like the for example we take the ball of magnesium, ठीक है। मान लीजिए एक मैग्नीशियम की बॉल है जिसकी वेट 250 ग्राम है, तो वी कैनॉट नो अबाउट द प्राइस ऑफ दैट बॉल। हमें उस मैग्नीशियम की 250 ग्राम की बॉल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। इट मे बी पॉसिबल वी विल परचेज इट फ्रॉम द 30,000, इट मे बी 5,000 और मे बी 1 लाख, क्योंकि हमें उनकी प्राइस के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो जब हमें किसी चीज़ की प्राइस के बारे में जानकारी नहीं, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम कई बार ज़्यादा में भी खरीद लेते हैं। नाउ देयर इज अ movement and the shift in the demand curve, how the demand curve was changed their position. There is a two condition, one is the movement and the another is the shift. Movement was condition in the pink color and the shift is in the blue color. Come to the pink color, extension and contraction of in the demand, it is due to the change in the price. ओके, डिमांड में एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब कभी प्राइस में चेंजेस आता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड चेंज होती है, इसको एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। एक्सटेंशन मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स जब डिमांड घट जाती है, हम उसमें अपवर्ड डिमांड कहते हैं। एंड द डिक्रीज एंड द इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम शिफ्ट कहते हैं, इट इज़ ड्यू टू द अदर फैक्टर दैन द प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन में काफ़ी चेंजेस आता है। इंक्रीज इन डिमांड की वजह से हम राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं एंड डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड। अब इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं। मूवमेंट इन द डिमांड कर्व अलोंग द डिमांड कर्व इज द एक्सटेंशन और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब ऑकर्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स इन द फॉल इन द प्राइस, जबकि कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब प्राइस बढ़ती है, ये देखते हैं। सो एक्सटेंशन का मतलब इंक्रीज होना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब रिड्यूस होना, ये देख लें। एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस कम होगी तब डिमांड एक्सटेंड होगी। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगी तब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी या कम होगी, ये देख लें। इन दिस डायग्राम यू हैव सीन्स दैट द प्राइस एंड द क्वांटिटी, okay, A in the demand curve, A is the initial condition at 1, the price is OP and the quantity is OQ. जब प्राइस कम होती है, प्राइस कम कहाँ हो रही, इन द प्राइस लाइन OP से OP1, तो डिमांड C पे शिफ्ट हो जाती है, दैट्स द OQ, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो रही है, यानी कि A से C में एक्सटेंशन है जब प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स एक ही डिमांड कर्व में हम जब ए से बी को मूव होते हैं, यानी कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड को कम हो जाती है, दैट इज द एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, देख लें। नेक्स्ट वाज शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। शिफ्ट देयर इज टू टाइप्स, फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट, जिसको हम इंक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं, रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज, किसी भी कारण से जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बैकवर्ड शिफ्ट, जब डिमांड कम हो जाती है, we will shift backward. In this diagram we were saying that the DD is the initial condition, जो एक सीधी लाइन से, जो डॉटेड लाइन है D2 D2 और D1 D1, ये दो नई डिमांड कर्व हैं। A से C को हम कहते हैं एक्सटेंशन, जिसको हम यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड कह रहे हैं। हो सकता है इनकम बढ़ने से, हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से, हम उसकी डिमांड को उसी प्राइस में, सेम प्राइस पे इंक्रीज कर देते हैं। और डिक्रीज, इनकम डिक्रीज, इनकम हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी भी कारण से जब ए से बी होते हैं हम बैकवर्ड शिफ्ट होते हैं, इसको कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि सेम प्राइस पे जब अदर फैक्टर देन द प्राइस की वजह से डिमांड में कोई चेंजेस आता है तो हम एक नए डिमांड कर्व में आ जाते हैं, दैट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। Okay, so that is our chapter. If you find any problem, you can call me or message me your query. Till then, have a nice day. Thank you all of you.